Assalamualaikum everyone. I'm going to Indus Medical College today for a session on job market challenges in AI driven world. I'm really excited to speak about it and I would like all of you to join through this video. So come and let's see what we did. मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया while I was doing my PhD in Japan. कैलाश वादी में हिकिड़ी कम्यूनिटी रहे थी कैलाश की सही आहे त उन्हनि सां गॾु असांजो पूरो हफ़्तो रहण थियो ऐं उते वञी करे जे एक्सपीरियंसिस हुआ उहे काफ़ी शॉकिंग हुआ. An award to Ms. Rushna Hussain. Thank you. My name is Rushna Hussain Maiman. I am a writer and a public speaker by passion, and I work as area sales manager at Nestle as profession. So moving on, as you've already heard about a lot of artificial intelligence and cloud computing and machine and everything like that, I'd also be talking about a similar topic. But yes, I would like to know कि आप सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, are you in your final year? You belong to the same field. All of you belong to the same field, right? Medical? No, they're different. Okay. And again, कुछ लोग ऐसे होंगे they'll be searching for jobs. कुछ लोग ऐसे हैं जो already jobs कर रहे हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए jobs ढूंढ रहे हैं, right? So you all know there are a lot of challenges in today's times. जहाँ पर again a lot of AI, a lot of machine manufacturing is happening. वहीं पर we have a lot of challenges. So we need to know कि वो challenges हैं क्या, and then we need to know what are the solutions of it, how to go towards success, right? Can you move the slide, please? So I'll be talking about job market challenges in AI-driven world. Yes, move please. So on today's menu, we have these topics. You can dine in the thoughts or take away, right? We'll be introducing. Okay, so the question that अगर किसी ने इंटरव्यू दिया है या किसी ने कोई इंटरव्यू सुना है, तो ये एक आम सा क्वेश्चन होता है जो हर किसी से पूछा जाता है. That where do you see yourself after 5 years or 10 years or 20 years, right? So we should all take a minute and imagine ourselves कि आज से 20 साल बाद किस तरह की दुनिया होगी. क्या वो वाकई जो रोबोट हमने बनाया था वेटर बना के, will we actually have a lot of robots roaming around, and maybe there will be a speaker as a robot in front of you and you would not know if that person is real or a robot, right? तो हमें वाकई पता लगेगा कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो मशीन्स हैं या लोग हैं या वो किस तरह हो रहा है. So can you imagine a world like a Hollywood movie, all machine, all robots, we don't know who's real, who's not, right? So yeah, move. Okay, so a little bit about artificial intelligence. It's actually the ability to it's actually the human ability to make machines who are actually copying human intelligence, because it's us, हम ही बना रहे हैं वो सारी चीज़ें. It's human who's making the machine to look like human, right? So this is artificial intelligence. कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हमने किया है. Yes. So the facts that we have chatbots, जिस तरह ChatGPT इन्होंने भी बताया, we have virtual assistants. अभी Snapchat ने My AI करके हमें जो है वो एक मैसेज किया, and we were all so excited. सारे लोग जो है ना वो Snapchat पे बातें कर रहे हैं and they're so happy because they are talking to a machine, okay? और ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर हो रही है, बहुत सारी इस तरह की मशीन्स बन रही हैं जो ऑटोमेटिक काम कर रही हैं एंड दे आर रिप्लेसिंग ह्यूमंस. डेटा एनालिसिस एंड इंसाइट्स पे भी अभी बात हुई कि किस तरह ओवरऑल डेटा की एक वैल्यू है, राइट? बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेटा और उसका एनालिसिस करना इज़ अ ह्यूज चैलेंज. अगेन आपको ये पता है कि आज हम सब मिल रहे हैं, राइट? ऑल ऑफ यू डोंट नो मी, और अब हम जाएंगे जब अपना फेसबुक खोलेंगे
तो पीपल यू मे नो में शायद मैं आपको नज़र आ जाऊंगी, या आप में से बहुत सारे लोग मुझे नज़र आ जाएंगे. सो दिस इज़ व्हाट यू नो, जो डेटा एनालिसिस हो रहा है, जिस चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जब ऐप्स हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो यही तरह की डेटा हमारी ट्रैक कर रहा होता है, क्योंकि हम मैप्स पे भी मौजूद हैं, हम डिफरेंट, हमारी लोकेशन भी ऑन है हर जगह पे, तो दैट इज़ ट्रैकिंग वेयर वी आर. इसी तरह से होगा कि आप जब नेटफ्लिक्स पे एक तरह की मूवीज़ देखते हैं तो वो आपको सजेस्ट भी उसी तरह की मूवीज़ ही करेगा. या फिर आप जब अमेज़ॉन पे या कहीं पे भी इफ़ यू सर्च फॉर समथिंग, आप गूगल पे कोई एक चीज़ लिखते हैं कि लेट्स से आई वांट टू बाय क्लोथ्स, ठीक है, आपको हर जगह कपड़ों के एड्स नज़र आएंगे और आपको लगेगा यार ये मतलब आज क्या कौन सा दिन है, दिस इज़ लाइक सो इंटरेस्टिंग. आई सर्च फॉर बाइंग अ मोबाइल फ़ोन और मैं जिस ऐप पे जा रहा हूँ तो यू नो मोबाइल फ़ोन ही नज़र आ रहा है. वाह, मतलब किस्मत अच्छी हो गई है. So this is not like that. It's actually tracking what you are trying to search so that it can give you similar data और आपको लगे कि wow, this is amazing. So अब AI is making an impact and it is making an impact on a lot of industries, right? If we talk about healthcare, बहुत सारी surgeries, operations हैं जो कि automated हो गए हैं. तो आपको you do not need like a lot of जो डॉक्टर के साथ बहुत सारा हेल्पिंग स्टाफ होता है, या यू डू नॉट नीड दैट स्टाफ नाउ. सो इट इज़ डिस्प्लेसिंग ऑल दोज काइंड ऑफ जॉब्स एज वेल. फिर हमारे पास फाइनेंस में बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स बना देते हैं, हमारी स्टेटमेंट्स, हमारी बैलेंस शीट्स, हमारी जो भी कॉस्ट एक्सपेंस शीट्स हैं वो सारी ऑटोमेट हो गई हैं. एंड देन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ ने अपना लाइंस को, चीज़ों को बहुत ऑटोमेट कर दिया है. सो वी नीड लाइक वेरी लेस पीपल. जैसे कि आई विजिटेड अ फैक्ट्री जो नेस्ले के जूसेस बनते हैं, तो वहाँ पर जो है वो द होल प्रोसेस फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फाइनल जो प्लास्टिक के डब्बे में पैक होके वो चीज़ आ रही होती है, द होल थिंग इज़ ऑटोमेटेड, नो ह्यूमन इंटरेक्शन. सो आप ये सोचें कि पहले कितने सारे लोग उस काम में इन्वॉल्व थे और अब उनकी जॉब्स नहीं हैं, राइट? नेक्स्ट. सो येस, AI is creating opportunities, but there are a lot of challenges with it as well, and we'll talk about the challenges. Yes, next. Too much to handle, right? So many challenges. हम सुनते हैं, हम कहते हैं यार छोड़ो, फिर हम वही सुबह को उठेंगे और फिर अपना यूनिवर्सिटी जाएंगे और फिर जो है वो घर आ जाएंगे, AI का हमसे क्या, राइट? बट देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, जिसमें अभी हम बात कर रहे थे कि जॉब डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद जो हम अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर रहे. एज इन द प्रीवियस टॉक वी वर टॉकिंग अबाउट कि हम क्या कर रहे हैं उसके लिए. आर वी वरीड अबाउट गेटिंग अवर स्किल्स अपग्रेडेड और नॉट? क्या हमारे पास उस तरह के स्किल्स हैं जो कि हमें एक AI वर्ल्ड में चाहिए होंगे, लेट्स से 5 years from now, 10 years from now, और इवन नाउ एट दिस पॉइंट? और फिर हम अपने करियर पाथ को किस तरह रीशेप कर रहे हैं. अब जैसे एक बंदा लेट्स से जो कि बैंक के रिसेप्शन पे बैठा है, ठीक है, उसका काम है कि बंदा आएगा, वो उसको सिखाएगा कि अकाउंट कैसे ओपन होता है, ठीक है, और फिर जो है वो उसको फिल करवाएगा और ख़त्म हो जाएगी उसकी जॉब. अब वो जॉब कितने रिस्क में है एट दिस पॉइंट कि वहाँ पे कोई भी रोबोट हो सकता है, कोई भी AI ड्रिवन ऑडियो वाला है वो कोई स्पीकर हो सकता है जो कि आपको वही चीज़ों से गाइड कर देगा. जस्ट लाइक आप ChatGPT पे कोई भी सवाल लिखते हैं तो इट गाइड्स यू, इट आंसर्स योर क्वेश्चंस, राइट? तो उसी तरह ये है कि वो सारे बंदे जो वो सब बैंक्स में रिसेप्शन पे हैं, उनकी जॉब को कितना बड़ा खतरा है. या हम अगर ये सोच रहे हैं कि हम पहले जो है वो शुरू करेंगे बैंक के रिसेप्शन से, तो आर वी डूइंग द राइट चॉइस और नॉट? क्या हम जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं अभी 2-3 साल के बाद हम वो वाली जॉब्स हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हमें सोचना चाहिए, राइट? एंड देन अगेन एडेप्टेबिलिटी की नीड है. वी नीड टू चेंज, वी नीड टू इवॉल्व आवरसेल्व्स कि यार हम जिस तरह काम अभी कर रहे हैं वी डोंट नीड टू वर्क दैट वे. पहले ये होता था कि आप जो है वो एक फील्ड में हैं तो आपको यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ नेटवर्क एंड यू नो कनेक्शंस. अब जो है आपको किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में आपको कनेक्शंस चाहिए, आपको नेटवर्क चाहिए. यू नीड टू नो पीपल टू गेट योर वर्क डन, राइट? नेक्स्ट. Again, some jobs will become obsolete and we should be very much careful about it. हम मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू पर जाते हैं
ठीक है, वहाँ पे एक स्पीकर बॉक्स बना होता है जिसको हम ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, उसके पीछे एक बंदा होता है जो हमसे ऑर्डर ले रहा होता है। अब उस बंदे की जॉब जो है वो 2 मिनट में चली जा सकती है, बिकॉज इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन AI मशीन, राइट। तो इस तरह की जॉब्स, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं सोचनी चाहिए। सो वी शुड अगेन, अभी हम ये बात कर रहे थे कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, सो विल डू अ लिटिल बिट activity regarding how do you want to rank yourself from the scale of 1 to 5, 5 being very good, 1 being poor, and these are AI driven skills कि आप किसी भी AI related job अगर करना चाहते हैं in future तो आपके पास ये skills होने चाहिए। So do you have these skills? Anybody जो voluntarily इस बारे में बताना चाहे who can rank themselves from these skills? If we can have mic in the audience. Someone can do it as a sample also, if any one of you. You want to try this? Yes, Dr. Zishan. What You just have to rank yourself कि जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में आप 1 to 5 कहाँ पे लाई करते हैं। What is 1? What is 5? 1 is poor, 5 is very good. All 1. All 1? Okay. Okay. Learning stage. Who is all 5? Miss Seema? Mashallah. Okay. Okay, so I have one of my teachers in the audience and I feel really, confused. Are you fine? Are you fine? Yes. Who else? 3 to 4. Okay, 3 to 4 in all of these skills. Then you are going to excel like anything, right? Inshallah. 3 to 4. 2 to 4. Okay. Yes, anyone from the girls? The communication 5. 5 out of 5. Okay. Yes, it's not important कि आप हर skill में ही excel करें. You can excel at one and not excel at any other. ठीक है. अब जैसे अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, सो इफ़ यू थिंक कि आप कहीं 0 पे, 1 पे, 2 पे लाई करते हैं इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वॉट एवर काइंड ऑफ जॉब यू डू इन फ्यूचर। अगर आपको AI रिलेटेड जॉब्स करनी है, उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा एनालिसिस, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी कि आर यू डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर पीपल। पहले ये होता था कि एक बंदा हमें मिल गया है नौकरी करने के लिए और उसको 4-5 काम आते हैं करने के लिए, तो हमारा काम हो जाएगा। But it's like we are going towards a specialization, we are going towards the job titles जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। अब जैसे हम कहते हैं कि क्रिएटिविटी मैनेजर, ठीक है, फिर आप जो है चले जाते हैं सोशल मीडिया डेवलपमेंट मैनेजर, मतलब काइंड ऑफ जॉब जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड काम के लिए होती है। सो आर यू डूइंग समथिंग दैट यू कैन डू एनी ऑफ दीज जॉब्स जो कुछ ऐसा स्पेशलाइज्ड आपको पता है। लेट्स से आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सो डू यू वांट टू डू अ जॉब दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी AI मशीन, ठीक है, तो यू शुड नो कि हमें उसमें क्या करना है नेक्स्ट। देन स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट शुड वी बी डूइंग। वी शुड हैव अ ग्रोथ माइंडसेट कि यार मुझे सीखना है, ये वाली लगन होनी चाहिए। ये all these websites called Coursera, LinkedIn Learning and all these places are there, जैसे वो MIT के आपको courses बताए थे, all of these things are there. We just need to be focused कि हम किस चीज़ में specialization कर रहे हैं, किस field में हैं, and do we have these skills or not. And then build network. It is very important. Someone texted me yesterday कि मैं grow करना चाहता हूँ, तो मुझे आप बताएं कि उसको किस तरह मैं करूँ। मैं बात नहीं कर सकता किसी से, मैं किसी को मैसेज नहीं करूँगा, ठीक है, अब मुझे बताएं ये कैसे होगा। तो आई टोल्ड हिम यू हैव स्टार्टेड वेल, यू हैव टेक्सटेड मी, नाउ यू स्टार्ट टेक्सटिंग अदर पीपल इन योर फील्ड ऑल्सो। सो इट नीड्स टू कम फ्रॉम विद इन। कोई आपको नहीं और सिखा सकता क्योंकि एवरीथिंग इज प्रेजेंट ऑनलाइन, ठीक है, लेकिन यू नीड टू ग्रो योर सेल्फ एंड अपना नेटवर्क बनाएंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। बिकॉज आई कैन, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम इन सेल्स। अब मैं बाकी सारे जो दुनिया के काम हैं वो सब मुझे नहीं आ सकते, बट आई कैन हैव अ नेटवर्क जिससे मैं वो सब करवा सकती हूँ किसी से, ठीक है। एंड देन AI कैन नॉट रिप्लेस ऑल द ह्यूमन क्वालिटीज़, सारी क्वालिटीज़ नहीं रिप्लेस हो सकती।
there's emotional intelligence, there is communication, there's creativity. All of these things cannot be replaced. अब जैसे कल मैं ChatGPT से बहुत सारी बातें पूछ रही थी, ठीक है? And I was like, ये वो चीज़ नहीं बता रहा जो मैं चाह रही हूँ. So there's something that can come out of my mind, out of my creativity also, right? And then explore all the jobs, all the AI related jobs that there are. Next. I would end it with technology is a useful servant. Somebody very wise has said this, that technology is a useful servant but a very dangerous master. So do not let technology be your master. Keep it as a slave because we have created it, right? And I would leave it with a question that in an AI-driven world, what does it mean to be uniquely human? Are you creative enough? Are you emotionally intelligent enough that you can make a difference and be unique? Okay, thank you.